Today we know so much about light and their nature. We also know that light shows particle nature as well as the wave nature. But in the beginning, some experiments were conducted on the basis of those experiments. Some theories were given, and one of the theory was given by Maxwell. So, good morning, students. Welcome you again in chemistry class. And today we are going to study a Maxwell theory, and this is the wave theory of radiation. Actually, Maxwell gave some points about the wave nature of light or radiation. In this theory, he told that light is transmitted in form of electromagnetic waves. लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है. अब जैसा कि इसमें पता चल रहा है नाम से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो हम ये कह सकते हैं दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद ऑक्सीलेटिंग electric field and magnetic field. That means there are two types of field present in electromagnetic waves, electric field and magnetic fields. And these fields are perpendicular to each other. और ये दोनों ही field एक दूसरे के perpendicular होती हैं and also to the direction of the propagation. It can be better understood by seeing this diagram. You can see the diagram of a wave. In this diagram, you can see there are two types of field. One is electric field and another one is magnetic field. These two fields are perpendicular to each other and forming 90-degree angle with each other. So these are the two fields, and you can see the direction of the propagation of radiation. This is also the perpendicular with the electric and magnetic field. So that's why we have said that the electric field and magnetic field present in electromagnetic waves, they are perpendicular to each other and they are also perpendicular with the direction of propagation. And point number 3, electromagnetic waves do not require any medium for their propagation and can travel in vacuum. And we know that there are some waves which require medium to propagate, such as sound wave. Sound cannot be heard without air. If there were no air in our atmosphere, we will not be able to hear anything. So sound waves require a medium. But if we talk about the electromagnetic wave, they do not require any medium. They can travel in vacuum. Vacuum means where there is nothing. There is nothing. There is no air, no gases. There is nothing. तो उसे हम vacuum कहते हैं. So that means electromagnetic wave does not require any medium to propagate. So these were the 3 points which were told by Maxwell in his theory, and this theory was called Maxwell wave theory or wave theory of radiation. So these points tell us about the property of radiation, but later on this theory was amended by some other scientists we will study further. Okay. Let's talk about some important characteristics of waves. Actually, we have written some definitions of important terms related to waves, and the first term is wavelength. So let's see what is wavelength. Actually, it is the distance between two consecutive crust or trough. Actually, you can see in this diagram, here we have a trough, sorry, here we have a crust and a trough. Okay, so these are two consecutive crust and these are two consecutive trough. So here we say the distance between two consecutive crust is wavelength and it is denoted by lambda. Okay, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, and it is expressed in angstrom, meter, centimeter and nanometer. So these are the units. Okay, so इसमें हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या है? These are the units. तो इन यूनिट्स में हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक्चुअली फ्रीक्वेंसी इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में किसी पॉइंट से गुजरने वाली नंबर ऑफ वेव्स जो है उन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमने एक ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया है,
अब इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो जाती हैं? जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स यहां से पास होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही हाई होगी। वन मोर थिंग विच आई वांट टू ऐड हियर कि फ्रीक्वेंसी जो है, ध्यान रखें बेटा, इसको एक्सप्रेस तो आप किससे करते हैं? न्यू से। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ न्यू। तो आप ध्यान रखें कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ वेव, एनर्जी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। दैट मीन्स जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उस वेव की जो एनर्जी है उतनी ही ज्यादा हाई होगी। ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड नेक्स्ट आता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं, साइकिल पर सेकेंड में या पर सेकेंड में। सो दीज आर द यूनिट्स। ठीक है ना, ये वो यूनिट्स हैं जिसमें हम वेव को, सॉरी, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इट इज द लीनियर डिस्टेंस, ओके, ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई भी वेव कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? वेव वेलोसिटी। जनरली हम वेलोसिटी भी ये कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट सेकेंड या यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बट यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां हम बात कर रहे हैं वेव की, कि कोई पर्टिकुलर वेव 1 सेकेंड में कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो उसकी वेव वेलोसिटी हो जाएगी। वेव वेलोसिटी को ध्यान रखें बेटा, c से एक्सप्रेस करते हैं। एक चीज और ध्यान रखें यहां पर कि वेव वेलोसिटी इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो वेव की वेलोसिटी होती है इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, और लाइट की वेलोसिटी क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ध्यान रखें कि वैक्यूम में वेव की वेलोसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी और लाइट की वेलोसिटी सेम होती है। ओके, इसको एक्सप्रेस किस में करते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखें, ये इनकी यूनिट्स हो सकती हैं। नाउ टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इट इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट, क्रस्ट की हाइट, और डेप्थ ऑफ द ट्रफ या ट्रफ की डेप्थ, इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये आपके पास में मीन लाइन है, यहां से क्रेस्ट की हाइट कितनी है वो इसका एम्पलीट्यूड है, या फिर यहां से ट्रफ की डेप्थ कितनी है ये इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो ध्यान रखें इसकी यूनिट जो है इट इज यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ वाली ही यूनिट है। यानी लेंथ को आप मीटर में, सेंटीमीटर में, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, ठीक है, एंगस्ट्रम में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको भी आप उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसकी यूनिट लेंथ वाली यूनिट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेव नंबर। तो एक्चुअली वेव नंबर क्या है? जैसा नाम से पता चल रहा है नंबर ऑफ वेव्स, लेकिन नंबर ऑफ वेव्स किसमें? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के अंदर। तो इट इज नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। आपके पास 1 सेंटीमीटर लेंथ है, सपोज ये मैंने एक डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है। अब इस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितनी नंबर ऑफ वेव्स है? यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ वेव्स यहाँ इस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है वो उसका वेव नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स जो प्रेजेंट है वही क्या है? वेव नंबर है। तो वेव नंबर को एक्सप्रेस किससे करते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड बाय न्यू बार। ठीक है ना, इसको न्यू बार से आप रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, ध्यान रखें। और इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखें, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है ये। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाली चीज है कि अगर आपको वेवलेंथ दी हुई है, वेव नंबर नहीं पता, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, तो वो वेव नंबर हो जाता है। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स क्यों? क्योंकि हमें पता है कि न्यू बार जो है वो 1/लैम्डा है, और लैम्डा की यूनिट क्या होती है? जैसे मैंने सेंटीमीटर ले ली तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से वेव नंबर की हम यूनिट फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। इन तीनों में क्या डिस्टेंस है, क्या रिलेशन है? तो फर्स्ट है C = लैम्डा इंटू न्यू, यानी
वेव वेलोसिटी जो है वो इक्वल होती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल ये है। और अब इसमें अगर मैं लेमडा को बाहर लेता हूं तो सी अपॉन न्यू लिख सकता हूं, और अगर मैं यहाँ न्यू को बाहर लेता हूं तो सी अपॉन लेमडा लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूला बेटा ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। अब हम आगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिनमें ये रिलेशंस काम में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैंप हैज अ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर। एक्चुअली जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेटा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द गिवन वैल्यू। सबसे पहले गिवन वैल्यू लिख लें, उसके बाद ये मान के चलिए आधा क्वेश्चन आपका हो गया, क्योंकि अगर आपको गिवन वैल्यू पता चल गई तो आपको आगे स्ट्राइक कर जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है ना, तो लेट्स राइट द गिवन वैल्यूज। तो गिवन वैल्यू में आपको जो दिया गया है दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ की वैल्यू दी गई है आपको 580 नैनोमीटर। ओके, एंड कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना है। अब देखिए प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि अगर मैं इनको इनसे रिलेट करता हूं तो हमें यहाँ पर जैसे एक रिलेशन जो हमने फाइंड किया था वो ये था कि C इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। ओके, तो अब अगर आपको लैम्डा फाइंड करना, वो न्यू फाइंड करना है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है आपको, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या आएगा, C अपॉन लैम्डा। अब क्या आपके पास लैम्डा तो है लेकिन C है क्या, देखो C आपको पता है कांस्टेंट होता है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे या रेडिएशन जो होती है उसकी जो स्पीड है, ध्यान रखना, उसकी जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, एंड दैट इज C इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो ये वैल्यू गिवन है, ठीक है 580, ये नैनोमीटर के अंदर है, और आपके पास लाइट की स्पीड जो है वो मीटर में है। तो जब तक यूनिट सेम नहीं हो, ध्यान रखना, जब तक यूनिट सेम नहीं हो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक द यूनिट सेम। ठीक है, तो दोनों की यूनिट को सेम करना है, तो आप इस नैनोमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो इसे क्या लिखा जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 580 इंटू नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁹ मीटर, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पर आपके पास C की वैल्यू आ गई है 3 इंटू 10⁸ और डिवाइडेड बाय, और लेमडा की वैल्यू आपके पास है 580 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब न्यू इक्वल्स टू C अपॉन लेमडा और 3 अपॉन 580 इंटू 10⁸ प्लस 9, जो लिखा जा सकता है इसको। अच्छा, अगर मैं एक जीरो को और बढ़ा देता हूं यहाँ पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं पॉइंट अभी यहाँ पर है और इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ ले आता हूँ, यहाँ ले लेते हैं ना इसको, तो 0.5 से आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं 3 अपॉन 0.58 इंटू, अब यहाँ मैं डिजिट को अगर इधर लेकर के आ रहा हूँ तो मुझे 10, यहाँ पर इसको क्या लिखना पड़ेगा 10⁻³ लगाना पड़ेगा, सॉरी 3 लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये 3 जब आप ऊपर लेके आएंगे तो पावर में चला जाएगा, तो 10⁻, ये कितना हो गया टोटल 17 हो गया है। तो 17 और 3 ऊपर ले जाओ -3, तो कितनी पावर हो गई आपके पास, अगर इस 3 को ऊपर ले गया तो -3 को कर दें यहाँ पर तो 14 रह जाएगा आपके पास, इस तरह से। ठीक है ना, अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब इसको अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पर न्यू आ गया आपके पास, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अब और थोड़ा अगले स्टेप पर आए तो देखिए हमारे पास न्यू आ गया है, अब हमें चाहिए ये, और ये क्या है हमारे पास वेव नंबर। और वेव नंबर फाइंड करने का मेथड क्या था, वेव नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो हमने कहा था इसमें और लैम्डा में रिलेशन है, इस तरह से कि वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। तो वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू गिवन है हमारे पास, कितना है 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन, जब भी अपन ने इसको चेंज किया था तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.58 इंटू 10⁻, तो यहाँ 3 हो जाएगी पावर, अगर पॉइंट को यहाँ लगाता हूँ मैं,
और वो 3 पावर यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बच गया आपके पास, -6। इसको ऊपर ले जाएं तो 1/0.58 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, इसको 1 में डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड तो कर सकते हैं आप, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। अगला स्टेप आपको करना है, इसको डिवाइड करके जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, तीनों ही चीजें फाइंड करनी है आपको। और आपको दिया हुआ है हुज पीरियड इज, उसका पीरियड दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर आपको पीरियड दिया हुआ है तो उससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, बताएं क्या फाइंड किया जा सकता है। यस, तो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पीरियड दिया हुआ है। तो पीरियड की हेल्प से ध्यान रखिए आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक सीधा सा रिलेशन है इसमें। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू कह रहे हैं, इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है ना, तो जो टाइम पीरियड है उसके इनवर्स के इक्वल होता है। तो टाइम पीरियड से अपन फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं पहले। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2.0 इंटू 10⁻10 सेकेंड है। ठीक है, और न्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, इसको डिवाइड कर दें तो 10 यानी आ जाएगा आपके पास में 0.5, ओके, इंटू 10⁻10 हो जाएगा ये फ्रीक्वेंसी। तो ये आ जाएगा आपके पास में मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है भाई, फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, आपको कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ फाइंड करना है, वेव नंबर फाइंड करना है। तो पहले वेवलेंथ निकाल लें। तो अभी हमने यहाँ देखा वेवलेंथ और इनमें क्या रिलेशन है, आप देखो ये c इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, ये सेकेंड है ना, c इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। तो आपको वेवलेंथ निकालना है तो लैम्डा इक्वल्स टू c अपॉन न्यू हो जाएगा। अब लैम्डा इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या आएगी बेटा, c की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट या वेव वेलोसिटी सेम होती है। और नेक्स्ट आपके पास है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिख दें इसको 0.5 इंटू 10⁻10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो लैम्डा इक्वल्स टू, पॉइंट अगर हटाते हैं तो वह 30 हो जाएगा, 30 में 6 टाइम जाएगा, 6 इंटू 10⁸ -10। तो लैम्डा इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है ना, और अगर डिवाइड करते हैं तो आपके पास लैम्डा की फिक्स वैल्यू आ जाएगी 0.06। ठीक है ना, 6 मीटर, ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास में वेवलेंथ आ गई है। तो वेवलेंथ भी फाइंड कर लिया, वेव नंबर और देखना है हमें। तो वेव नंबर के लिए फार्मूला क्या होता है बेटा, वेव नंबर के लिए फार्मूला होता है आपके पास 1/λ। ठीक है ना, तो लैम्डा की वैल्यू देखो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो आप। तो 0.06 को डिवाइड कर लें तो पॉइंट हटाए तो कितना आ जाएगा 100/6। 6 को डिवाइड करें कितना आता है, तो 6 1 is 6, 40, 6 6 is 36, देन अगेन 6 6, तो अप्रॉक्स 6 7 लिख दें इसको। तो ये आपके पास वेव नंबर आ गया। ठीक है ना, ये वेव नंबर आ गया है इतना मीटर इनवर्स, क्योंकि मीटर में था तो मीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिए हैं। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे, तो उन न्यूमेरिकल्स को भी आप सॉल्व करके जरूर देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। यस, लेट्स सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इट्स वेरी सिंपल, अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन सबको अरेंज कर दिया जाए। ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, उनके वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, और उनके फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उससे जो हमारे पास में स्पेक्ट्रम बनेगा उसे आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मैंने डायग्राम बनाया है, जहां पर अलग अलग वेव्स को मैंने यहाँ पर लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है कि इसको लर्न कैसे करें। ठीक है,
तो अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को लर्न करना है तो इट्स वेरी सिंपल, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच रेडिएशन उसको आप अलग से निकाल लें, जैसा मैंने यहाँ पर किया है कि सबका फर्स्ट लेटर मैंने यूज में लिया है और इनको एक साथ मिला करके एक वर्ड बना लें। और अगर आपको वर्ड याद हो गया तो आपको इसका ऑर्डर भी याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कॉस्मिक के लिए सी, गामा, जी, X for X-rays, U for ultraviolet, V for visible, I for infrared, M for microwaves and R for radio waves. ओके, तो यहाँ इसको अब क्या बोलेंगे, देखो C G X U, CGXU, V I M R, वाइमर, CGXU वाइमर। एक बार थोड़ा प्रॉब्लम आएगी लेकिन दो चार बार आप इस वर्ड को बोलेंगे बार बार, ठीक है ना, अगेन एंड अगेन व्हेन यू रिपीट दिस वर्ड यू विल बी, इट विल बी बाय हर्ट। ओके, तो याद हो जाएगा आपको, और ये लर्न हो गया तो आपको ऑर्डर भी लर्न हो गया है। सिजेक्सिव वाइमर, ओके, सिजेक्सिव वाइमर मींस कॉस्मिक, गामा, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। अब बात आती है इन वेव्स की का ऑर्डर आपको दिख रहा है किस तरह से। जैसे मैंने कहा अगर मैं कॉस्मिक से यहाँ पर जा रहा हूँ रेडियो वेव्स की तरफ, तो आप देखो इनकी वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी अगर राइट से लेफ्ट आते हैं तो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मैंने अरेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नीचे इनकी वेवलेंथ लिखी हुई है। तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है 10⁻⁻16 कॉस्मिक, ठीक है, देन उससे भी ज्यादा 10⁻⁻14, उससे भी ग्रेटर है 10⁻10, ऐसे करते करते रेडियो वेव तक आते हैं। तो रेडियो वेव जो है वो आपके पास में 10⁸ तक आ जाती है। ठीक है, अब हम इनके यूज के बारे में बात करते हैं कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कॉस्मिक रेज। एक्चुअली कॉस्मिक रेज जो होती है बहुत ज्यादा फैटल होती है। ये उस समय प्रोड्यूस होती है जब कोई ब्लास्ट होता है या बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, खासकर से न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया या कोई ब्लास्ट हो गया, तो उस समय ये वेव्स जनरेट होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल कंडीशंस में ये जनरेट नहीं होती है। ठीक है, तो ये कॉस्मिक रेज है, ये मोस्टली यूनिवर्स के अंदर देखी जाती है। ठीक है, अर्थ पर कुछ स्पेशल केसेस के अंदर ही जनरेट होती है, बाकी यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, दिखने को तो क्या मिलती है, मतलब दिखती नहीं है लेकिन होती है। ओके, और थोड़ा आगे चलें। अच्छा, इसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट बात और बताएं इसकी। देखो कॉस्मिक रेज जो है, हम ये कह रहे हैं कि इनकी जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻16 मीटर। और ध्यान रखना कि वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जैसे वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये कि वेवलेंथ जितनी हाई होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। ठीक है, और वेवलेंथ जितनी कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होगी। तो आप देखो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि एनर्जी ऑफ वेव जो है, एनर्जी ऑफ वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इसलिए एनर्जी भी सबसे ज्यादा है, और इसीलिए ये सबसे फैटल है, सबसे ज्यादा डेंजरस अपन कह सकते हैं कि ये वेव्स होती है। ठीक है, कॉस्मिक रेज जो है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद आती है गामा रेज। एक्चुअली गामा रेज जो है ये भी काफी हाई एनर्जी रखती हैं। इनका यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में। आपने कई बार सुना होगा कि रेडिएशन ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर में। जो सेल्स होती हैं जिनकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाती है, उन सेल को बर्न करने के लिए इन रेडिएशंस को उन सेल पर डाला जाता है जिससे वो सेल बर्न हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि उनको बर्न कर सकती है, ये बॉडी को बर्न कर सकती है, सेल्स को बर्न कर सकती है, तो कितनी ज्यादा एनर्जी कंटेन करके रखती हैं। ठीक है ना, तो कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं हम मेडिकल पिक्स बनाने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। ये बिल्कुल कॉमन है, पता है आप सबको कि एक्सरे जो है, एक्सरे जैसे कोई बोन अगर फ्रैक्चर हो गई है तो उसका हम लोग एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे में क्या होता है कि जब वो एक्सरेज उसके आर पार, मतलब दे पास थ्रू द बोन और द मसल्स, सो दे फॉर्म अ डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, बोन्स फॉर्म अ डिफरेंट इमेज एंड मसल्स फॉर्म डिफरेंट इमेज, एंड वेयर देयर इज अ फ्रैक्चर इट फॉर्म अ डिफरेंट इमेज। तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कहाँ से फ्रैक्चर है, नहीं है, तो वहां हम इसका यूज करते हैं। आगे चलें तो उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज जो है जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, इसमें जर्म्स को किल करने के लिए काम में आती है। ठीक है, देन विजिबल रेज, वी ऑल नो अबाउट इट। विजिबल रेज हमारे चारों तरफ जो भी रेज हैं सन से आने वाली, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं,
दे आर विजिबल रेज। ठीक है, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली, ठीक है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी कम है, और मतलब मॉडरेट कंडीशंस के अंदर है फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है दोनों ही। फिर हम बात करते हैं इंफ्रारेड रेज। अब इंफ्रारेड रेज जो है इनका यूज किया जाता है हीटिंग करने के लिए। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट के लिए। कई बार आपने देखा होगा जैसे किसी चोट लगने पर या किसी को कोई मसल्स का पेन है तो वहां पर उसको हीट थेरेपी देने के लिए इसका यूज भी किया जा सकता है। इसके अलावा माइक्रोवेव्स की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोवेव ओवन का नाम आपने सुना होगा। तो माइक्रोवेव ओवन कुकिंग पर्पस के लिए काम में आता है, तो वहां इसका यूज किया जाता है। देन लास्ट में आता है हमारे पास रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स जो है, आप देखिए रेडियो सिग्नल जो होते हैं, चाहे वो टेलीफोन के हो, टेलीविजन के हो, चाहे वो रेडियो के हो, तो वो सभी ट्रांजिस्टर के हो, तो वो जितने भी सिग्नल्स हैं वो सब रेडियो वेव्स के थ्रू आते हैं। तो ये सब इनकी एप्लीकेशंस हैं। तो रेडियो वेव ध्यान रखें, इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से ही इसको सिग्नल के लिए यूज में लेते हैं। आप देखिए सिग्नल हमारे पास विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हमारे पास सिग्नल पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत हाई है, वेव्स बड़ी हैं ये, और इतनी बड़ी वेव्स है और ये मूव कर रही हैं लाइट की स्पीड से, और वेव लेंथ इनकी ज्यादा है तो नेचुरल है बहुत स्पीड से अपने पास पहुंचेगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अब देखो अगर हम बात करें विजिबल रेज की, तो विजिबल रेज जो होती हैं इनको भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं इनके कलर के अकॉर्डिंग। जैसे आपने सुना होगा विबग्योर, ठीक है ना, जो रेनबो के अंदर कलर्स होते हैं उसमें भी आपने पढ़ा होगा विबग्योर क्या होता है। या फिर आपने ये पढ़ा होगा कि जिसमें प्रिज्म में से अगर हम लाइट को पास करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट होने के बाद 7 कलर बनाता है। ठीक है, और वो 7 कलर का जो ऑर्डर है उसको हम विबग्योर से याद करते हैं। तो विबग्योर में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जब आप इस तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास वेवलेंथ बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होनी चाहिए? रेड की। और सबसे कम किसकी होनी चाहिए? वॉयलेट की। और यही रीजन है, आप देखिए इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे इवनिंग के टाइम पर आपको सन रेड दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उस समय सन का डिस्टेंस अर्थ से सबसे ज्यादा होता है, और हमारे तक जो पहुंचती हैं वेव्स वो बहुत लंबा डिस्टेंस जो ट्रेवल करके पहुंचती हैं, जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वही पहुंच पाती है, और वो रेड कलर है। ठीक है, इसलिए हमें सन जो है वो रेड दिखाई देता है, बाकी वेव्स नहीं आ पाती। ठीक है, स्कैटरिंग की वजह से। इसके अलावा सिग्नल्स जो होते हैं, गाड़ी की जो बैकलाइट्स होती हैं, आप देखो वो सब रेड कलर की होती हैं। उसका रीजन यही है कि क्योंकि वो दूर से ही दिखाई दे जाए, क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो बहुत इजीली जल्दी से ट्रेवल करके और वो पहुंच जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हम वेव से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह फाइंड करना। चलिए वो देखते हैं।